بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. حاضران محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مائدہ آیت نمبر 15 کی تلاوت کی گئی ہے. 7ویں رکوع کے ابتدائی آیتوں میں بنی اسرائیل کے متعلق بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 12 نقیبوں کا انتخاب فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ نائب تھے اور اپنی اپنی قوم کے اپنے قبیلے کے وہ سردار تھے، اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا گیا کہ وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور انبیاء کرام کی تعظیم کریں. تو ان کا اللہ تبارک تعالیٰ ان کو جنت میں ایسے مقامات عطا فرمائے گا، محلات عطا فرمائے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گے. پھر ان لوگوں نے اللہ سے کیا گیا وعدہ توڑ دیا، جس کی وجہ سے ان پر ذلت اور غربت کو مسلط کر دیا گیا. اب یہ 15ویں آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب. قرآن پاک میں احادیث شریفہ میں جہاں اہل کتاب کا ذکر ملتا ہے، اہل کتاب کا اصل معنی ہے کتاب والے. کتاب والوں سے مراد وہ لوگ، وہ قوم جن کے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب عطا فرمائی، اور اس قوم کو عمل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قانون دیا گیا. یہ مفہوم ہے اہل کتاب کا. اہل کتاب میں اس وقت جو مشہور لوگ ہیں وہ خاص طور پر یہودی اور عیسائی ہیں. ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے. اہل کتاب کا ہمارے پاس ہمارے دین میں ان کے متعلق کیا اعتقاد رکھنا ہے، تو اس کے بارے میں قرآن پاک اور احادیث پاک میں بعض مقامات پر جو ابتدائی زمانے میں آیتیں نازل ہوئی تھی، اس میں یہ بتا دیا گیا تھا کہ اہل کتاب سے مسلمان نکاح کر سکتے ہیں اور ان کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال ہے. یہ بالکل ابتدائی اسلام میں بتایا گیا تھا، اور وہ قانون آج بھی ہے، اس پر عمل آج بھی ہو سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ اہل کتاب ہوں. اس وقت سوائے مسلمانوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب قرآن مجید عطا فرمائی، کوئی اہل کتاب نہیں ہے. اہل کتاب اس وقت نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جتنے بھی عیسائی یہودی ہیں، انہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کر دی، تبدیلی کر دی، اور اپنے من مانی عقیدے اعمال اس میں داخل کر دیے. اس لیے ان کو اہل کتاب نہیں کہہ سکتے. یعنی جو کتاب ان کو دی گئی تھی اسی کو بدل دیے، تو پھر وہ کتاب والے کیسے ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کتاب کی جو قدر نہ کر سکے، اس سے بڑا کافر مشرک کون ہو سکتا ہے؟ مشرکین کو تو کوئی کتاب، مطلب ان کی طرف کوئی نبی باضابطہ، ان کے جاہلیت کے دور میں کوئی نبی ان کے پاس نہیں آئے تھے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، مشرکین مکہ نے، مشرکین اہل عرب نے. لیکن جن کو کتابیں دی گئی تھی، انبیاء کرام جن کے پاس آئے تھے، عیسیٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، تو یہ سارے پاک نبی جن کے پاس آئے تھے، انہوں نے معاذ اللہ بعض نبیوں کو شہید کر دیا اور جو کتابیں دی گئی تھی اس کو بدل دیا. تو ان کے پاس چونکہ سختی اور نافرمانی کا شوق زیادہ ہے، اس لیے ان پر عذاب بھی ویسے مسلط کر دیے گئے اور احکامات بھی ویسے سخت ان پر اتارے گئے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اہل کتاب، اے کتاب والو، قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں. غور کرنے کی بات ہے کہ جتنے انبیاء آئے تھے یا پھر اہل کتاب جن کو نبی مانتے تھے، وہ بھی اللہ کے رسول ہیں، مگر چونکہ
یہودی اور عیسائی انبیاء کرام کے واسطے اور وسیلے سے اللہ کو اپنا رب جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو وہ اپنا خالق مالک مانتے تھے، تو نبیوں کے واسطے سے مانتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نے جن نبیوں کو مانا ہے انہی رسولوں میں سے ہمارے ایک رسول ہے حضور اکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ ہمارے رسول ہے۔ تم ہم کو خدا مانتے ہو تو پھر ہمارے رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ تو اس میں ایک قسم کی تنبیہ کی جا رہی ہے اور انہیں جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ تم خدا مانتے ہو، اللہ تعالیٰ کو رب مانتے ہو، تو رب کے رسول کو کیوں نہیں مانتے؟ قد جاءکم رسولنا، ہمارے رسول تمہارے پاس آئے ہیں، یبین لکم، اور تمہیں کھول کھول کے بیان کرتے ہیں۔ کھول کھول کے کیا بیان کرتے ہیں؟ غیب کی باتیں، پچھلے زمانے کے احوال، پچھلے زمانے میں کیا واقعات پیش آئے تھے، وہ سارے تفصیلات حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں اور عیسائیوں کے سامنے واضح فرما دیا، جبکہ وہ سب امور وہ جانتے تھے، ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہ تورات پڑھی، نہ زبور پڑھی، نہ انجیل پڑھی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پڑھتے ہیں، پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، مگر حضور نے پڑھا نہیں ہے۔ پڑھنا جاننا اور بات ہے اور نہ پڑھنا اور بات ہے، دونوں میں فرق ہے۔ مثال کے طور پر حاضرین، کہ کوئی آدمی بہت بڑا لیکچرر ہے، اس سے پوچھا جائے کہ آپ نے وکالت کی کتاب پڑھی ہے، تو وہ کہے گا کہ میرا جو شعبہ ہے، میرا جو میدان ہے، میں وہ کتابیں پڑھا ہوں، وکالت کی تو میں نے کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ تو لوگ کیا کہیں گے؟ ان کو پڑھنا نہیں آتا، یہ بولیں گے؟ یہ نہیں کہیں گے، بلکہ یہ کہیں گے کہ یہ پڑھے نہیں ہیں، یہ کتاب نہیں پڑھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں آیا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام امیوں میں امی بنا کر بھیجے گئے۔ امیوں میں بھیجے گئے کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ، جو قوم پڑھنے لکھنے کی عادی نہیں ہے، پڑھنا لکھنا ان کا کام نہیں ہے، وہ بغیر پڑھے بغیر لکھے ہزاروں شعر زبان سے بول دیتے ہیں۔ لوگ سیکھتے ہیں شعر بولنے کے لیے، کوشش کرتے ہیں، پڑھنے لکھنے کے بعد ایک درجہ آتا ہے، اس کے بعد میں کوشش کر کے اشعار بناتے ہیں اور رائمز بناتے ہیں، پوئم کا جو پوئٹری ہوتی ہے اس کے بارے میں کوشش کرتے ہیں، تب جا کے ان کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، وہ شعر بول سکتے ہیں۔ عرب کے لوگ ایسے نہیں تھے، نہ انہوں نے کبھی لکھا، نہ عرب کے لوگوں نے پڑھا، مگر اشعار ایسے کہتے تھے کہ ہزاروں شعر ایک ایک ساتھ بول لیتے تھے۔ شعر یاد کیے ہوئے نہیں ہوتے تھے، ان کی زبان سے نکل جاتے تھے۔ ایسے لوگوں کو امی کہا جاتا ہے۔ امی کا مطلب جاہل نہیں ہے، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں ہے، امی کا معنی ہے جن کو پڑھنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پڑھے لکھے ساری باتیں اپنے طور پہ بول لیتے ہیں۔ ایسی قوم ساری دنیا میں ایک اہل عرب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی میں بھیجا۔ جیسے عرب کا ماحول تھا، کسی کے پاس جا کے بیٹھتے نہیں تھے، سیکھتے نہیں تھے، قلم نہیں پکڑتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی سے کچھ سیکھا ہی نہیں، اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ خالق کائنات، کائنات میں ہمارے آقا کے کوئی معلم اور کوئی استاذ ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے کچھ سیکھا نہیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے سیکھنے کی، اس لیے کہ جہاں کو حضور سکھانے کے لیے آئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں ساری کائنات کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا گیا۔ تو کونین کے استاذ ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، دو جہاں کو تعلیم دینے والے۔ خیر، تو حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کھول کھول کر تمہاری وہ باتیں جس کو تم جانتے ہیں کتابوں میں پڑھ کر، ہمارے نبی وہ کتابیں پڑھے بغیر تمہیں سب بتا دیتے ہیں۔ اکثر یہودی عیسائی آ کر سوالات کرتے تھے کہ آپ اگر نبی ہیں تو بتائیے ذوالقرنین کون ہے، آپ نبی ہیں تو بتائیے یاجوج ماجوج کا حال کیا ہے، آپ نبی ہیں تو بتائیے کہ غار والوں کا حال کیا ہے، کہف والوں کا۔ کبھی سوال کرتے یوسف علیہ السلام کا واقعہ کیا تھا، کبھی پوچھتے کہ وہ باغ والے کون تھے جس کو ارم کہا گیا۔ اس طرح کے پچھلے زمانے میں جو نعمتیں دی گئی تھی قوموں کو، یا عذاب ان کے گناہوں کی وجہ سے اترا تھا، اس کے بارے میں سوال کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سب باتیں ارشاد فرما دیتے۔ تو اس طرف یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے یبین لکم، کہ تمہیں وہ کھول کھول کر بتاتے ہیں۔ تو حاضرین، یہاں سے کیا پتہ چلا
हमारे लिए बड़े अफसोस की बात है। आप गौर करें कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहा है कि वो खोल के बयान करते हैं, वाज़ेह फरमा देते हैं, कोई बात छुपाते नहीं है, नहीं जानते का सवाल नहीं है, बताता वही है जो जानता हो। लेकिन अफसोस है कि आज हम ये झगड़ों में पड़े हुए हैं कि हुजूर को इल्म गैब था नहीं था। कितने ताज्जुब की बात है। आप गौर करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म नहीं था, अगर नौज़ बिल्लाह ये कहे तो जन्नत है किसने बताया? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत अल्लाह ताला की मखलूकात में से एक मखलूक है जो उसके नेक बंदों के लिए, कलीमा को मुसलमानों के लिए मुकर्रर कर दी गई है, बनाई गई है। जन्नत बन चुकी है, पैदा कर दी गई है। और जन्नत में महल्लात होंगे, बागात होंगे, उसके नीचे नहरें बहेंगी। जन्नत के महल्लात की दीवारें कैसी बनी हैं? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि एक दीवार, एक ईंट सोने की तो दूसरी चांदी की। और जिस तरह दुनिया में पत्थर और ईंट से दीवार बनाने के लिए सीमेंट, गच्छी या कोई और चीज इस्तेमाल की जाती है, जन्नत की दीवारें, महल्लात की दीवारें बनाने के लिए मिस्क इस्तेमाल किया जाता है। वहां की सरजमीन पर हीरे, जवाहिर, लाल, याकूत, मोती ऐसे पड़े हुए होते हैं जैसे जमीन में दुनिया में पत्थर कंकर पड़े हुए होते हैं। वहां की जमीन हीरे, जवाहिर और लालो याकूत की होती है। ये सारी गैब की बातें नहीं है तो क्या है? किसने बताया? मरने के बाद गुनाहगारों को सजा दी जाएगी, बेनमाजियों पर अजदाह मुसल्लत कर दिया जाएगा, फरिश्ते गुर्ज लेकर आएंगे और मारेंगे तो वो 70 गज अंदर चले जाएंगे, और गुनाहगार की कब्र तंग कर दी जाएगी, फसलियां एक दूसरे से मिल जाएंगी, जमीन ऐसे दबाएगी। नेक आदमी हो जो फरिश्तों के सवाल के जवाब देगा, जवाब देना अमल की बुनियाद पर नहीं होगा, फरिश्तों के सवाल के जवाब कामयाबी की बुनियाद पर है। यहां जिंदगी भर सवालात के जवाब रटते रहेंगे तो कब्र में याद नहीं आते। कब्र के सवालात उन्हीं के लिए आसान है जो दीन इस्लाम पर अमल करते हैं, सही अकीदे रखते हैं, सही अमल करते हैं, उनके लिए कब्र के सवालात आसान है। वरना सवाल तो याद भी नहीं आएगा, जवाब याद नहीं आएगा। खैर, तो जो सवालात के जवाब देते हैं उनके लिए कब्र 70 गज चौड़ी लंबी कर दी जाएगी। ये गैब की बात नहीं है तो क्या है? फिर कौन कहता है भाई कि हुजूर गैब नहीं जानते? क्या माना है गैब नहीं जानने का मतलब? माअल्लाह। तो बहरहाल हाज़िरीन किराम, अर्ज करने का मतलब ये है कि अब सवाल ये पैदा होता है, लोग ये कह सकते हैं कि नहीं, अल्लाह ताला ने जो बताया हुजूर वो जानते। तो किसने कहा कि अल्लाह ने नहीं बताया भी तो जानते? किसने कहा? कौन कह सकता है? रब ने जो बताया वही जानते हैं। हाँ, रब ने क्या बताया आपको और हमको क्या मालूम? क्या हमको मालूम है कि अल्लाह ने हुजूर को क्या बताया और क्या नहीं बताया? अगर हमको मालूम हो माज़अल्लाह कि अल्लाह ने हुजूर को क्या बताया वो भी मालूम और क्या नहीं बताया, अगर वो भी मालूम है हमको, तो फिर हम नौजुबिल्लाह नबी से बड़े इल्म वाले हो गए। कौन कह सकता है? कौन कह सकता है हुजूर ये नहीं जानते? वही कह सकता है जो वाकईतन जानता है कि हुजूर ये नहीं जानते। हमको किसने बताया कि हुजूर ये नहीं जानते? कौन दावा कर सकता है? जिब्रील आए थे हमारे पास माज़अल्लाह, या कोई हदीस है या कोई कुरान की आयत है कि अल्लाह ताला ने हुजूर को ये नहीं बताया, ये नहीं बताया? कहाँ लिखा हुआ है? कौन कहता है? अगर कोई कह रहा है तो माज़अल्लाह कुफ्र का अंदेशा है। वो ये कहना चाहता है कि मैं नबी से बढ़ के जानता हूं, कि हुजूर जो नहीं जानते वो मैं जानता हूं, माज़अल्लाह। तो इतनी बड़ी कुफ्र की बात हो गई। इसलिए सोच समझ के कहना चाहिए क्या कह रहे हैं। किसी से सुन लिए, जबान पे रट लिए, 1 से 4 बार कोई बात सुन लिए, जबान उठाए बोल दिए। इतना आसान मामला नहीं है दीन का। अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। तो बहरहाल ये आयत करीमा वाज़ेह कर रही है, युबय्यिनु लकुम कसीरा, बहुत सारी चीजें हुजूर तुम्हें बयान फरमाते हैं, वो बहुत सारी चीजें जिनको तुम छुपाते हो। मिम्मा कुंतुम तुख्फूना मिनल किताब, अल्लाह की किताबों में जो बातें बताई गई थी, अहकाम दिए गए थे, अकाइद का इल्म दिया गया था, वो सब तुम छुपाते थे, यहूदी छुपाते थे। खुद तौरात, ज़बूर, इंजील में ये भी लिखा हुआ था कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाएंगे, आपका नाम अहमद होगा, मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहर मक्का में तशरीफ लाएंगे, सूरत और शक्ल ऐसी होगी, हुस्न जमाल ऐसा होगा। यहां तक के आसमानी किताबों में नबी के सहाबा के नाम भी मिलते हैं, अहले बैत के नाम भी मिलते हैं।
آپ کے 4 खुलफा होंगे, अहले बैत होंगे, नवासे होंगे, सबका जिक्र है। तो ये सारी बातें यहूदी छुपाया करते थे। नबी पाक अलैहिस्सलाम सब कुछ वाज़ेह फरमा देते हैं कि तुम क्या छुपाते हो, क्या जाहिर करते हो। उसकी एक मिसाल मैं आपको देना चाहूंगा सही बुखारी शरीफ में कि यहूदियों में एक आदमी ने गुनाह किया, उसकी सजा मुकर्रर थी रज्म करना, यानी शादीशुदा आदमी गुनाह करे, जिना करे तो उसे मरने तक पत्थर मारने का हुक्म है। इस्लामी हुकूमत और सल्तनत को तो बादशाह वक्त, सुल्तान वक्त ये सजा देगा। अवाम को ये सजा देने की इजाजत नहीं है, अवाम का ये काम नहीं है। तो बहरहाल यहूदी, जब यहूदियों में एक आदमी ने जब ये गुनाह किया, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीने पाक में यहूदी को लाया गया, क्योंकि मदीने शरीफ तशरीफ लाने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके फैसले फरमाते थे। यानी हुकूमत सल्तनत तो हुजूर ने कायम नहीं फरमाई, मगर मामलात सारे हुजूर ही की तरफ पलट कर आते थे। फैसलों की बात हो, झगड़ों की बात हो, प्यारे आका फैसला फरमाते थे। यहूदी भी उन फैसलों को मानते थे। तो जब यहूदी को लाया गया तो बाज़ यहूदियों ने कहा कि नहीं, हम ये सजा को नहीं मानते, ये तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम आप जो सजा बता रहे हैं वो क्यों माने हैं। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी किताब ज़बूर में भी यही लिखा हुआ है, ज़बूर में भी यही लिखा हुआ है। तो नुस्खा लाया गया। तो जो जानने वाला था, ये भी इस बात पर भी मैं एक बात इसके साथ आ रही है तो आपके इल्म में इजाफे के लिए कहूंगा कि हाजिरीन, अल्लाह ताला का शुक्र है कि कुरान मजीद आलिमों की किताब नहीं है, कुरान शरीफ खानदान की किताब भी नहीं है, और कुरान शरीफ कोई खास तबके की किताब भी नहीं है। कुरान मजीद सारे जहां के लिए भेजी गई, इस पर किसी की इजारादारी नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं, कुरान जैसा मैं समझा हूं वही बात सही है, बाकी सब गलत है। ना ही ये कह सकता है कि तुम कुरान को हाथ नहीं लगाना, पढ़ना नहीं। यही काम यहूदी ईसाई करते थे। इंजील उनके खास पढ़े लिखे लोग ही पढ़ते थे, दूसरों के हाथ में उनके घर में भी नहीं होती थी। तौरात का वही हाल था, ज़बूर का वही हाल था। लेकिन देखिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितना बड़ा एहसान फरमाया। हर मुसलमान के घर में कुरान एक नहीं 5-5 10-10 नुस्खे होते, लोग पढ़ते रहते हैं। किसी की इजारादारी नहीं है कुरान पाक में। दुनिया में एक इस्लाम ऐसा मजहब है जहां पे कुरान और हदीस जो हमारे दीन का असल मबलग है, मस्दर है, वो हर आदमी को पढ़ने की इजाजत है, कोई रोक नहीं सकता। ये कोई नायाब किताबें नहीं है कि भाई नहीं मिल पाती। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से इसको आम रखा है। तो खैर, अर्ज करने का मतलब यह है कि उनके कौम में लोग तौरात, ज़बूर, इंजील पढ़ना भी नहीं जानते थे, वो पढ़ाते भी नहीं थे। आज भी यहूदियों का यही हाल है। यहूदी कौम में खास तौर पर उनकी किताब सिर्फ उनके खास तबके के लोग पढ़ते हैं, किसी दूसरों के पास वो किताब भी नहीं होती। जिसके कानून पे ये 2 लोगों को चला रहे हैं। कितनी वसात है हमारे दीन में, गौर करें। ऐसी कोई पाबंदी हम पर आयद नहीं कर दी गई। लेकिन अफसोस की बात है, बात आई है तो मैं अर्ज कर रहा हूं, अफसोस की बात है आज हमारे पास वो बना लिया गया कि भाई तदफीन का मरहला आ गया, फातिहा पढ़ना है, दुआ करना है तो इमाम साहब ही चाहना। मतलब ये कि हमको पढ़ना नहीं आता, हमको लिखना नहीं आता, हम पढ़ नहीं सकते, हम दुआ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? दीन ने पाबंदी लगाई कि आप दुआ मत करो, इमाम साहब ही करो, आलिम साहब ही दुआ करना, कोई और नहीं करना। ऐसी कोई पाबंदी है? कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, ये और बात है कि भाई वो जानने वाले हैं, उनका तकद्दुस है, उनकी इज्जत है, नेक होते हैं, इस वजह से हम उनसे दुआ करा रहे हैं, एक अलग मसला है। लेकिन नहीं आता हम इसलिए उनसे करा रहे हैं, ये तो ऐब की बात है। तदफीन करना नहीं आता इसलिए मौज़िन साहब को बुलाए, फातिहा पढ़ना नहीं आता इमाम साहब को बुलाए, वो काम करना नहीं आता वो फला साहब को बुलाए। हर मुसलमान को इस मैदान में आगे होना चाहिए। वालिद का इंतकाल हुआ, बेटे का इंतकाल हुआ, रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, तो वालिद का इंतकाल हुआ, बेटे का हक है वो नमाज पढ़ाए, नमाज जनाजा। सीखते क्यों नहीं? सीखना चाहिए। सिर्फ सीखने से भी काम नहीं चलेगा। वैसा नहीं है कि भाई वालिद साहब के नमाज पढ़ाने को आ गए, एक साहब पैंट शर्ट है, इनशर्ट किए हुए दाढ़ी मुंडे और सर पे टोपी नहीं, वो नमाज पढ़ाने को आए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए।
मेरे को नमाज पढ़ाना आता है इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। अहल भी होना चाहिए, अहलियत भी पैदा करिए, इल्म भी सीखिए, दोनों काम होने चाहिए। तो बहरहाल हमारे दीन में किसी भी काम पर किसी की इजारादारी नहीं है कि इमाम साहब इन्हों थे तो उनके बेटे इमाम, खतीब साहब इन्हें थे तो इनके बेटे खतीब, काजी साहब फलां थे तो उनके बेटे काजी। हमारे दीन में इजारादारी का तस्वुर ही नहीं। जो अहल है वो आगे, जिसके पास सलाहियत है वो आगे। बड़ी वुसअत है हमारे दीन में, समझने की जरूरत है। बहरहाल हाजिरीन किराम, ये मामला था यहूदियों का। वो अपने कौम को पढ़ाते भी नहीं थे। क्या लिखा हुआ है तौरात में, ज़बूर में? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाया गया, उनका एक आलिम आया और पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते एक जुमला छोड़ दिया, छोड़ देकर आगे बढ़ने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करके बताया कि यही लिखा हुआ है, ये पढ़ो, जो तुम छोड़ रहे हैं वो पढ़ो। यहां लिखा हुआ है तुम्हारी किताब में कि जिना करने वाले को यह सजा दी जाएगी, जो सजा का फैसला हमने किया है। तो हाजिरीन किराम, तुम्हारी किताबों में, अल्लाह ताला फरमा रहे, तुम्हारी किताबों में जो बातें तुम छुपा छुपा के रखते थे, हमारे नबी वो खोल खोल के बयान करते। ये शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इल्म छुपाए जाने वाली चीज का नाम नहीं है, इल्म बताए जाने वाली चीज का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोग इल्म छुपाते हैं वो बड़े गुनाहगार है और उसके बदले में उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाएगा। तो सिखाना चाहिए, जो हम जानते हैं वो दूसरों को बताएं, जो हम जानते हैं वो दूसरों को सिखाएं। हमारे दिल में छुपाने की कोई बात नहीं है। हाँ, एक बात इतनी है कि जो जितना संभाल सकता है उसको उतना दिया जाए, ये जरूर है। जैसे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ताबीन से फरमा रहे हैं, ऐ लोगों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने ऐसा ऐसा इल्म सीखा है कि एक हिस्सा मैं बयान कर रहा हूं और दूसरा हिस्सा अगर इल्म का मैं तुम्हें बताऊं तो तुम मेरी बात ना समझ पाकर मेरी गर्दन काट दोगे। कि अबू हुरैरा दीन से निकल गए ये कहकर। तो मतलब क्या था? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने बातिन का इल्म, खास इल्म भी सीखा था। एक तो वो इल्म होता है जो सबको बताया जाता है, और दूसरा वो इल्म होता है जो हर किसी को बताया नहीं जाता, छुपाया जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं, हर किसी को बताया नहीं जाता। छुपाना और है, ना बताना और है, दोनों में फर्क है। अहलियत के मुताबिक होता है, अहलियत हो तो वो बात मामले बताए जाते हैं। उसको हम यूं भी समझ सकते हैं, एक हदीस शरीफ है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मिशकातुल मसावी की हदीस है कि जो लोग इल्म समझ नहीं सकते उनको इल्म की बातें बताना ऐसा ही है जैसे कि बद जानवर के गले में हीरों का हार डालना है। तो मतलब जो मुतहम्मिल नहीं हो सकते, बात गहरी बातें होती हैं दीन की, इल्म की, वो हर किसी को समझ में नहीं आती। इसलिए बाज अल्लाह वालों की ये शान थी, उनके सीने में अल्लाह का इल्म ऐसा होता था कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाते थे या तो किसी को बताना या फिर लिखना, इसलिए वो किताबों में लिख देते थे। बाज बुजुर्गों के बारे में यह भी आया है कि वो जो इल्म उनके दिल में है, सीने में है, सुना नहीं सकते किसी को, आदमी मुतहम्मिल नहीं था तो तन्हाई में बोल लेते थे, तन्हाई में बोल लेते थे, ताकि उनको इत्मीनान हो जाए कि मैंने जो जाना है वो दूसरों तक पहुंचा दिया। चाहे वो शजर हजर दरख्त जमीन आसमान क्यों ना हो, चाहे इंसान क्यों ना हो, ऐसा भी इल्म होता है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का ये इल्म है। और बाज़ाब्ता हदीस पाक भी हुजूर ने फरमाया, इल्म दो किस्म का होता है, एक इल्म वो जो जबान पे होता है और एक इल्म वो जो दिल में होता है। तो दिल का इल्म जो होता है उसको खास तौर पर मारिफत और तसव्वुफ का इल्म कहते हैं, और ये इल्म बिलखुसूस उलमाए रब्बानीयीन के पास पाया जाता है। वो उलमा जो अल्लाह वाले, उलमा तो सब है, इल्म रखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, हदीस पढ़ते हैं, जानते हैं और मसाइल से वाकिफ है, दीन के तमाम उमूर बअमानत अंजाम देते हैं। ये तो उलमा है, इनकी इज्जत है, इनकी शान है। मगर इनके साथ कुरान और हदीस का एक पोशीदा इल्म भी होता है,
उसका इल्म रखने वाले सीने कुछ और होते हैं, उनको उलमाए रब्बानीयीन कहते हैं। तो बहरहाल उलमाए रब्बानीयीन के पास वो बातिनी इल्म होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने वो इल्म भी सीखा है। अब उसकी मिसालें हम अगर देंगे तो बड़ी तफसीली बात हो जाएगी कि वो इल्म होता कैसा, सिखाया कैसा जाता, उसका माना क्या है। और एक बात ये भी याद रखें, जिसको इल्म तसव्वुफ या इल्म मारिफत कहते हैं वो कुरान और हदीस के खिलाफ नहीं होता, और ना ही कुरान और हदीस के अलावा कहीं से आता है। ये भी याद रखें, कुरान और हदीस के अलावा कहीं से नहीं आता और कुरान और हदीस के खिलाफ भी नहीं होता। बाज लोग क्या करते हैं, इधर उधर की बातें किससे भी कुछ सुन लिए, आधी बात समझ ली आधी नहीं समझे, और बस उठ पटाख की बातें करने लगे। आजकल तो वो मारिफत तसव्वुफ की बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे। आप होटलों में बैठ के करते हैं, चौराहों पे बैठ के करते हैं, चबूतरों पे करते हैं, चाय पीते पीते प्यालियां सुखा देते हैं और वो बातों में लग जाते हैं। फिर हर बात पे बोलते हैं हम मारिफत की बात कर रहे हैं। वो कोई मारिफत की बातें नहीं है, ये सब ढकोसले। मारिफत यानी अल्लाह की पहचान, अल्लाह ताला की कुर्बत, ये तालीम औलिया अल्लाह के पास होती है। दीन से बेजार लोगों के पास नहीं होती, बेनमाजियों के पास नहीं होता है। और अपने मुंह को रंगने वाले, मुंह में गंदगी डालने वाले, सिगरेट पीने वाले और गुटखे खाने वाले, ऐसे लोगों के पास ये इल्म आएगा? ताज्जुब की बात है। पाक इल्म गंदे मुंह वालों के पास कैसे आएगा? तो ये सब बातें हैं, लोगों को बस बातें करना आता है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तसव्वुफ और मारिफत क़ील व क़ाल का नाम नहीं है, हाल का नाम है। यानी इंसान के दिल पर जो हालत और कैफियत तारी होती है उसको मारिफत कहते हैं। जबान से बोल लेने का नाम तसव्वुफ नहीं है। तो बहरहाल हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सहाबाए किराम ने वो इल्म सीखा है। अर्ज करने का मतलब, सारी बात का खुलासा हम जहां से आए थे वो ये है कि छुपाने वाली कोई बात हमारे दीन में नहीं है, अहलियत और काबिलियत के साथ बताए जाने वाली होती है। बहुत सारे फिक़ी मसाइल में भी ऐसे मसाइल हैं जिनको आमतौर पे लोग समझ नहीं पाते, इसलिए वो बातें चूंकि ज्यादातर उसकी जरूरत नहीं पड़ती इसलिए वो बताते भी नहीं है। हाँ, कोई आदमी बाज़ाब्ता तालीम हासिल करे, रेगुलर आए, पढ़े, आहिस्ता आहिस्ता उसको वो सब बातें भी समझ में आती है। खैर दीन ही क्या, दुनिया की भी कोई बात किसी को आमतौर पर जल्दी नहीं समझ में आती, उसको तरतीब से सीखना होता है, तो दीन का इल्म भी सीखना होता है। खैर फरमाया अल्लाह तबारक तआला ने कि तुम जो छुपाते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बताते हैं। वयाफू अन कसीर, और बहुत सारे लोगों को माफ भी कर देते हैं, यानी जो जियादती कर रहे हैं, हक की बातें नहीं बताते, उनको माफ भी फरमा देते हैं। उसके बाद इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, कि ऐ लोगो अहले किताब, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब आई। यहाँ पर दो चीजें आने का जिक्र किया गया। मुफस्सिरीन किराम अक्सर ये इरशाद फरमाते हैं, सहाबाए किराम के इस बारे में बाज़ाब्ता रिवायतें हैं कि अल्लाह ताला फरमा रहा तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया। तो नूर का माना हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। यानी अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि लोगों, मैंने हमारे नबी को नूर बनाकर भेजा है। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुतालिक अहले इस्लाम का अकीदा क्या है कि क्या हुजूर नूर है या बशर? तो हाज़िरीन, यहाँ पर ये नूर है या बशर है में ये लफ्ज़ या लाना ही नहीं चाहिए कि हुजूर नूर है या बशर है, ये लफ्ज़ या नहीं लाना चाहिए। फिर क्या कहना चाहिए, हुजूर नूर है और बशर भी है। सही जुमला तो ऐसा है दोनों, क्योंकि जब कोई चीज एक दूसरे की जिद होती है तो या कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे कि आप बैठे हैं या उठे, तो बात समझ में आती है। अगर कोई ये पूछे कि आप बैठे हैं या खा रहे हैं, तो वो कहेगा मैं बैठे हुए खा भी सकता हूं। आप लेटे हैं या सो रहे हैं, तो कहेगा लेटे हुए सो सकते हैं। तो लेटे हुए या फिर खड़े हुए, ये जिद है। अब रात है या दिन है, ये जिद है। सर्दी है या गर्मी है, ये एक दूसरे की जिद है। तो नूर और बशर ये जिद है ही नहीं, जिद ही नहीं है। नूर की जिद अंधेरा है, बशर नहीं है। नूर की जिद अंधेरा है, तो अंधेरा जिद है, फिर बशर कैसे जिद हुआ?
एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। लिहाजा अहादीस शरीफा है, ये तो कुरान पाक की आयत है, सूरह माइदा की आयत नंबर 15 के आखिरी में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आया, रोशन किताब आई। तो नूर का माना यहाँ पर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते पाक है। अब कैसे, बेशुमार अहादीस शरीफा है, मैं आपको एक 6-8 हदीसें बताऊंगा। सबसे पहले हाज़रीन किराम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब विलादत बासआदत हुई, हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे बतने मुबारक से, फरमा रहे हैं कि मेरे पेट से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जलवगर हुए तो एक नूर निकला, और उस नूर की रोशनी में मुल्क शाम के घर, वहां के महल्लात मैंने देख लिए। शहर मक्का में 4 दीवारी के अंदर रात के अंधेरे में हजरत आमीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सरकार के नूर की रोशनी में मुल्क शाम, जो 1 महीने की दूरी पर है, तो वहां के मकामात के महल्लात देख लिए। तो ये नूर है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। हुजूर की तशरीफ आवरी ही नूर के साथ हुई, बशरी लिबास में हुजूर तशरीफ लाए, हकीकत नूरानियत है। और इसके साथ में सही बुखारी की हदीस है, बाज़ाब्ता सहाबा इकराम फरमाते हैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आपके जाते पाक पर वही का नुज़ूल होता तो पेशानी अक़दस पर पसीना जाहिर होता, और आपके पेशानी की रगें, पेशानी पर जो रगें होती है उसके बारे में फरमा रहे हैं कि तबरुकु असारीरु वजहिही, चेहरे अनवर की रगें रोशन होने लगती। तो आप बताइए कि रग रोशन कहाँ होती है? रग तो हरी होती है, लेकिन यहां नूर वाले होने, रोशन होने का जिक्र किया जा रहा है, वो भी सही बुखारी शरीफ में। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर से नूर की झलकियां निकलती थी। इसी बुखारी शरीफ में आता है किताबुल इस्तिस्का में और किताबुस सलात में, नमाज के बयान में, इस्तिस्का की नमाज के बयान में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ के लिए, इस्तिस्का की दुआ के लिए, बारिश तलब करने के लिए दस्ते मुबारक उठाते तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल मुबारक से रोशनी निकलती। साहबा फरमाते हैं हम आपके बगल की सफेदी को देख लेते। जबकि अहादीस पाक में आता है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो लिबास पहने हुए होते हैं उसके आस्तीन कलाइयों तक होते थे। आस्तीन कलाइयों तक है, कोई हाथ उठाए तो बगल कहां से नजर आते? तो बगल मुबारक से नूर निकलता था, वो नूरानियत को साहबा इकराम देख लेते थे। उसको उन्होंने बयादु इब्तैही कहा, यानी बगल पाक से सफेदी जाहिर होती। आस्तीन होते हुए सफेदी कैसे जाहिर होती? तो माना यह है कि वहां सफेदी का मतलब सफेदी नहीं है बल्कि नूरानियत है, नूर आपके जिस्म मुबारक से छलकने लगता। ये तो खुद बुखारी शरीफ में आता है। इसके अलावा हाज़रीन मौजम कबीर तबरानी की हदीस शरीफ है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर के बाद घर में तशरीफ लाए। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, अभी मेरे कमरे में अंधेरा था, नमाज फजर के बाद मैं कुछ सी रही थी, हाथ से मेरे सुई छूट गई, अंधेरे की वजह से मैं सुई तलाश ना कर सकी, नहीं मिल पाई, तलाश की मगर नहीं मिली। जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाती हैं कि कमरा मुनव्वर हो गया और मैंने सुई को उठा लिया। जो सुई खो गई थी सरकार के नूर की रोशनी में, वो सुई आपने उठा ली। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमा रही। बात इतनी नहीं है, मौजम कबीर तबरानी में और हदीस पाक की किताबों में भी आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मुस्कुराते तो आपके दंदाने मुबारक से रोशनी निकलती और उस नूर की शुआएं दीवारों पर, दरो दीवार पर पड़ती थी। जैसे लाइट की रोशनी आती है, सूरज की रोशनी आती है, हुजूर के दंदाने मुबारक से ऐसी रोशनी निकलती थी। तो जाते पाक आईने नूर है, इसलिए नूर की छलकियां जाहिर होती थी। और हाज़रीन मुस्तदरक हाकिम, इब्ने आसाकिर वगैरह की हदीस शरीफ के एक सहाबी, दो सहाबाई किराम थे, हुजूर की खिदमत में बैठे हुए थे। नमाज इशा के बाद रात देर हो गई, बात जब मुकम्मल हो गई तो वो जाने लगे। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंधेरा है, अंधेरी गलियों में आप कैसे जाएंगे अपने घर तक? बाहर से कोई लकड़ी लाओ। जब लकड़ी लाई गई
तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लकड़ी को अपने हाथ से छू लिया और एक हदीस पाक में आता है उस पर फूंक मारी तो लकड़ी के ऊपर वाला हिस्सा रोशन हो गया। फरमाया कि इसकी रोशनी में तुम अपने घर चले जाओ। दो सहाबा थे, जब उनके घर रास्ता जुदा हो रहा था तो एक लकड़ी उठाकर दूसरे ने फिर उस लकड़ी को अपनी लकड़ी से लगा दिया, वो भी रोशन हो गई। आग नहीं लगी थी, सिर्फ रोशनी थी। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फूंकते भी हैं तो रोशनी आती है। और एक सहाबी के मुतालिक आया है, प्यार मोहब्बत से हुजूर ने बचपन में उनके सर पे हाथ फेर दिया तो वो फरमा रहे हैं कि जिंदगी भर मेरे वो बाल रोशन ही रोशन नूरानियत वाले रहे और उन बालों को मैंने कभी नहीं काटा जिस पे हुजूर ने अपना हाथ फेरा था। बाल रोशन नूरानी कैसे होते हैं? बाल चमकते हैं और बातें काले होते हैं, मगर नूरानी रोशन थे जहां हुजूर का दस्ते मुबारक पहुंचा। एक सहाबी की आंख निकल गई थी। हजरत इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा अपनी किताब में खसाइस से कुबरा में, तो आंख निकल गई, हुजूर की खिदमत में लेकर आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आंख उनके हाथ में लेकर उनके चेहरे पर लगा दी और अपना हाथ भी फिर गया। वो फरमाते हैं कि मेरी वो आंख में दूसरी आंख से ज्यादा रोशनी आ गई। तो ये ज़ाते पाक है हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की, नूरानियत की ये कैफियत है। अब एक सवाल ये पैदा होता है, लोग जो आमतौर पे समझते हैं कि भाई हुजूर नूर हैं तो फिर बशर कैसे हुए, बशर है तो फिर नूर कैसे हुए? तो पहले मैंने अर्ज कर दिया है कि हाज़रीन ये दूसरे की जिद है नहीं तो जमा क्यों नहीं हो सकते? कि भाई जैसे मिसाल के तौर पर ये आदमी, ये शख्स इंसान है और बूढ़े हैं, तो इंसान बूढ़ा हो सकता है, इंसान जवान भी हो सकता है, इंसान बच्चा भी हो सकता है। क्या ये मुमकिन नहीं है कि इंसान हो बूढ़ा हो, इंसान हो जवान हो, इंसान हो बच्चा हो? ये जिद है नहीं तो दोनों भी हो सकते हैं। इसके बरखिलाफ में कि ये आदमी बूढ़ा है बच्चा है, ये नहीं जमा हो सकता। एक ही वक्त में एक ही चीज में दोनों हालतें एक साथ जमा नहीं हो सकती। जिद हो तो नहीं जमा होती। नूरानियत और बशरियत जिद है नहीं तो जरूर जमा हो सकते। दूसरी बात, सही बुखारी की हदीस है कि एक शख्स आए, बड़ी लंबी हदीस है, मैं मुख्तसर कह रहा हूं। 3 बातें उन्होंने पूछी, ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, ihसान क्या है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब समझा दिया। समझाने के बाद हजरत उमर फरमा रहे हैं कि वो आदमी है, एक रजुल आए, आदमी आए, रजुल अरबी में आदमी को कहते, तो आदमी आए, उनके बाल परागंदा भी नहीं थे, मतलब बिखरे हुए नहीं थे, सफर करके नहीं आ रहे थे, पाँव पे गर्दो गुबार भी नहीं था, फिर हम पहचानते भी नहीं थे क्योंकि वो अहले मदीना में से नहीं थे, मगर सफर से भी नहीं आ रहे थे। कौन थे, क्या है, पता नहीं। 3 सवाल किए, हुजूर ने जवाब दिए। जब वो जाने लगे तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम जानते हो ये कौन है? साहबा ने अर्ज किया हुजूर आप जाने, अल्लाह जाने, आप जाने, अल्लाह के रसूल जाने। तो हुजूर ने फरमाया कि ये जिब्रील अलैहिस्सलाम है, मेरे पास तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए आए थे। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम कौन सी शक्ल में आए थे? इंसानी शक्ल में आए थे। तो जिब्रील नूर है नहीं है, फरिश्ते नूर से बने। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम नूर होकर बशर के लिबास में आ सकते हैं, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर होकर बशर के लिबास में क्यों नहीं आ सकते? तो बशरियत नूरानियत एक जगह जमा हो सकती है, ये खुद बुखारी के हदीस से साबित है। बहरहाल हाज़िरीन किराम, कुरान पाक में चूंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नूरानियत का जिक्र आया है, अल्लाह ताला ने भी फरमाया कि तुम्हारे पास नूर आए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे ही लोगों को हिदायत मिलती है जैसे रोशनी से मिलती है। अंधेरे में आदमी रास्ता गुम कर देता, रोशनी में अपनी मंजिल मकसूद को पहुंचता है। इसलिए अल्लाह ने नबी को नूर बनाकर भेजा। वो नूर जो दिलों को भी रोशन करता है, वो नूर जो जिस्म को भी रोशन करता है। तो ऐसी नूरानियत अल्लाह ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। ये 15वीं आयत इख्तिताम को पहुंची है। इसके बाद मजीद इंशाअल्लाह तफसीलात अगली नशिस्तों में अर्ज कर दी जाएगी। अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद समझना और उसके मफाहिम जानना आसान फरमा दे, कलाम इलाही की तासीर हमारे क़ुलूब में नाजिल फरमा दे, उतार दे। अल्लाह के अहकाम पर अमल करना हमारे लिए आसान फरमा दे। कुरान मजीद की बरकतों से हमारी ज़िंदगी, क़ब्रें, आखिरत, हश्र सब दुरुस्त फरमाए। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि खल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।